Hello, good morning. I am Dr. Ansari Naseem, class TYBA, subject Politics G3. In this video, I will explain the fourth chapter of the first term, Fascism, and I have explained the introductions of the Fascism. But today I will explain the meaning and definition of the Fascism. The word Fascism is derived from Latin word fascicio, means a bundle of stick. After First World War, despite of victory, Italy did not get any benefits, which causes frustration among the Italians, and Mussolini took advantage by inculcating fascist philosophy in people. देखिए सबसे पहले now the meaning of the fascism. The fascism is derived from the Latin word fascio. Fascio means a bundle of stick, यानी लकड़ियों का गत्था, लकड़ियों का बंडल. But after the First World War, despite of victory, Italy did not get any benefits, which causes frustration among the Italian people. Now then, after the First World War, the Italy came into socio-political and economic crisis, and the Italians' condition is very depressed condition and disappointed condition. But that's time to rise of the personality of Mussolini, and there were presented the ideology of the fascism. But ideology is the not only the one ideologies, but now there were two around of the number of ideologies, and there are against of the democracy and communism. But there were only the worship of power and power of worship. उसका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ पावर की पूजा करना, और अगर पूजा करना तो पावर की. तो नाउ द fascism derived from the Latin word fascio, means a bundle of stick. But now then after, there were establishment of the fascist party, and there were remarkable of and symbol of axe, यानी कुल्हाड़ी. तो इस तरीके से नाउ मीन्स द पब्लिक पावर एंड अथॉरिटी. उसकी मीनिंग ही है पब्लिक अथॉरिटी एंड पावर, बट ओनली पावर इन माय हैंड, यानी सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वो मसोलिनी के हाथ में है. यू सी द डिफिनेशन ऑफ फैसिसिज्म. द मूवमेंट विच अपोज कैपिटलिस्ट एंड द मिडल क्लास इन फैसिसिज्म. देखिए द वर्ड हिस्ट्री डिराइव फ्रॉम द इकोनॉमिक हिस्टोरिकल बेस, द अपर क्लास, मिडल क्लास एंड लोअर क्लास. बट द फैसिसिज्म इज कंसिस्ट ऑन ओनली मिडल क्लास. देखिए फैसिसिज्म जो है ख़ासतौर से मिडल क्लास यानी दरमियानी तबके के लोगों को लोग मानने वाले थे. बट दिस मूवमेंट विच अपोज्ड कैपिटलिस्ट मीन्स सरमायादाराना निज़ाम, यानी फैसिसिज्म इस मूवमेंट में ख़ास तौर से कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे, यानी सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ थे. एंड द मिडल क्लास इन फैसिसिज्म, बट द टोटली कंसिस्ट ऑन द मिडल क्लास इन द फैसिसिज्म इन इटाली. देन सेकंड, फैसिसिज्म इज़ अ वन पार्टी and dictatorship and all encompassing organization characterized by extremist nationalism, racism, military, कोरोना एंड इम्पीरियलिज्म. देखिए इसकी जो ख़ास आइडियोलॉजी थी, नाउ व्हाट इज़ मीन बाय द वन पार्टी. फॉर एग्जाम्पल द आवर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे यहाँ पे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी,
but compare of the fascism in consist on one political party, और वो पॉलिटिकल पार्टी कौन थी? फैसिस्ट पार्टी थी. बट नॉट दे आर द मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एंड टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, द अमेरिका इज अडॉप्टेड द टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, Democratic and Republican political party, as well as the England, the adopted of the one political party, Conservative party. But as well as the fascist adopted of the one political party system in Italy under the leadership of Mussolini and dictatorship. Dictatorship means पूरी की पूरी तरीके से आमराना हुकूक का इस्तेमाल करना. Mussolini says that I am only declared the role, you are obedience my role. मैं सिर्फ और सिर्फ हुक्म जारी करूँगा, आप लोगों को मेरे हुक्म की ताबेदारी करना है. तो डिक्टेटरशिप एंड ऑल encompassing organization characterized by extremist nationalism. But now the two type the nationalism, reactionary nationalism and कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म, यानी एक तामीरी जहन रखना और एक तखरीबी जहन रखना. बट मसोलिनी इज टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म. देखिए, जिस वक्त हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ इन 1907, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सूरत. But now this event in the history of the Indian freedom struggle, सूरत सेशन is built in 1907. Why do? क्यों ये मानी रखता है कि इस सूरत सेशन स्पिरिट में जो है ख़ास तौर से, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लीडर डिवाइडेड बिटवीन बोथ ब्लॉक, एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड मॉडरेटेस्ट लीडर. दादा भाई नौरोजी वॉज लेड बाय द मॉडरेटेस्ट लीडर, लोकमान्य तिलक वॉज लेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर. यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडरों में खुलकर जो है झगड़ा हुआ और ये दोनों दो ग्रुप हुआ. एक जो है मॉडरेटेस्ट ग्रुप, एक जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. हालांकि दोनों जो है अपने मुल्क से प्यार करते थे और दोनों का मकसद एक ही था, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी, लेकिन उनके कंसेप्ट, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी. दादा भाई नौरोजी का कहना था कि अगर हमें हिंदुस्तान को आज़ाद करना है तो ब्रिटिश से मिलकर रहना होगा, लेकिन उसके कंपेयर में लोकमान्य तिलक का कहना था कि अगर हमें हिंदुस्तान को आज़ाद करना है तो हमें एक्सट्रीमिस्ट यानी तशद्दुद पसंदी इख्तियार करना होगी, यानी सीधी उंगली से कभी भी घी नहीं निकलेगा. तो इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, फैसिज्म, मिलिट्री, कोरोना एंड इम्पीरियलिज्म, और ख़ास तौर से बट देयर वेयर यूज़ ऑफ द मिलिट्री फोर्स इन देयर इटाली बाय द मसोलिनी. थर्ड, आइडियोलॉजी विथ एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी इज फैसिज्म. आइडियोलॉजी विथ एग्रेसिव नेशनलिज्म, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी कि लोकमान्य तिलक सेज दैट, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेज दैट अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ लोकमान्य तिलक, ही वाज द अनरेस्ट लीडर ऑफ द इंडियन कंट्री. यानी वो हमारे हिंदुस्तान के एक बेचैन लीडर थे. देयर वेयर टू गिव द हॉट स्लोगन इज स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है, इसलिए. बट देयर वेयर यूज ऑफ द एग्रेसिव नेचर एंड इन दिस सूरत सेशन इज built to classify from the Indian National Congress Party and started their movement and introduce of the four view of the program and to join of the home rule movement with Mrs. Annie Besant. But this group says that Lal Bal Pal. There were use of the aggressive nature against of the British Empire. तो so as well as ideology with aggressive nationalism and economic self sufficiency. और मसोलिनी का एक ही मकसद था, हमारे मुल्क की मईशत को सेल्फ करना. Why do? In their first world war, the heavy destroyed man, money, material in the Italians people and Italians country, but so that got the good opportunities, and there were the showman, master of mind,
and to give the hot slogan, I will promise to you, irredenta of Italia. मैं इटालिया की खोई हुई शान शौकत को दोबारा वापस लाऊंगा. तो इस तरीके से नाउ देयर वर द डिफिनेशन ऑफ द फैसिसिज्म and establish and to give the presented by the Mussolini in this Italy then after the First World War. And rise of the fascism is the totally responsible to rise of the Second World War in the world. Okay, thank you very much. Thanks a lot.